गुड मॉर्निंग जी सबको। गुड मॉर्निंग सुष्मिता जी, वेलकम। Good morning. गुड मॉर्निंग डॉक्टर पद्मावती जी, किरण जी, सलोनी, विद्यावती जी, एसपी सिंह जी, अनुराधा गुड जी, मॉर्निंग सर। प्रिया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Morning, आज हमारे साथ Sushmita. है सुष्मिता जी, जो बड़ा प्यारा सा हमारे लिए मेडिटेशन लेके आई हैं मनी के ऊपर। मनी के ऊपर करवा रहे हो ना आप सुष्मिता जी? जी। तो मनी के ऊपर आज वो हमारे लिए करवा रही है मेडिटेशन, क्योंकि आज मनी वीक हमारा चल रहा है। तो आई होप सबको बढ़िया सा लगेगा, मनी वीक में मजा आ रहा होगा सबको। तो इसके बाद में मेडिटेशन के बाद में हम करेंगे अपना आज का फिर से पावर बुक का जो हमारा सफर चल रहा है उसको और बढ़ाएंगे, जो हमारी जर्नी चल रही है। तो वेलकम सुष्मिता मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए। और अभी मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, तो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक जरा म्यूट कर लेंगे प्लीज। Thank you, Dr. Kiran. Thank you. All right. So, all of you sit comfortably. सुनाई दे रहा है ना? Sit comfortably, or it's so early in the morning. If you want to lie down, that is fine too. Only thing I request is for you to keep your palms facing the ceiling in a receiving position. And relax. Relax yourself in your mind as much as you can. At the start itself, decide to get the most out of this meditation. Take a deep breath in and exhale slowly. Take another deeper breath in and release slowly. Make your exhale longer. As you breathe, feel your own energy and the energy of the group. The field is a shared field. All of us together are working towards the same goal. And give yourself permission now to receive more than you have ever been receiving. Imagine now imagine, think, or feel you are at the top of a golden staircase. The staircase is made up of light, and you will be slowly gliding in one step after the other. With every step, you will release any discomfort or control and become ready to receive more and more. You'll put your left foot forward and then right. Take your left foot forward, step in. Again, your left foot forward and then right.
Your body is softening. You are on step 9. Your jaw is unclenching. The tiny muscles around your eyes are relaxing. Left foot forward and right. Step number 8. Your mind is quietening. You're allowing your mind to quieten more and more. Left foot forward and right. Step number 7. You're drifting deeper and deeper within yourself. Left foot forward and right. Step 6. You're releasing any effort around money completely. Step number 5. Left foot forward and right. You are halfway there, safe and held. Absolutely safe and held. Left foot forward and right. You're going deeper still. Left foot forward and right. Step number 3. On this golden staircase of light, you're on step number 3 and you're almost there. Left foot forward and right. Step 2. You're surrendering yourself deeper. Left foot forward and right. 1. You are fully within. There's a tiny corridor in front of you. Again, left foot forward and right, you walk. And in front of you appears a door. Huge door. You know it's a vault. और इसके सामने खड़े होकर लंबी गहरी सांस लीजिए और अंदर जाते ही मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप नोटिस करेंगे क्या थॉट आया. You step into this vault. It's a money vault. Place your hand on it, open it, and get inside and notice how your body is feeling. Does it feel heavy, locked, distant? क्या feel हो रहा है? जो भी feel हो रहा है या नहीं हो रहा है, it's all right. Tell yourself, I'm ready to see the truth about my relationship with money within me. Inside the vault, you may notice symbols or allow a memory to drift in. Allow feelings to come. सोचिए कोई एक belief about money which is rising within you, whatever it could be. I have to struggle for money, or I can't hold money, or if money comes, it just goes, it leaves me. Money doesn't come to me easily, I have to work hard, jo bhi ho. Now, see it as a ball of energy. Give it a color. This is just a ball of energy, not the truth. Imagine a beautiful flame, orange, which has come onto your palms. And it is transforming that ball which you're holding. And that flame is writing a new code.
And what is that code which is forming with the orange flame on your hand? I will speak some affirmations. You feel it within your heart. Money comes to me through alignment. Money comes to me through ease. I am already that person who has what I desire. Feel it. You have transformed yourself. Opportunities find me easily. I act when it matters, and I trust when it flows. They are getting installed in your subconscious mind. Feel your nervous system adjusting like it's learning a new normal. Money comes to you through alignment. You're safe to receive, hold, and grow wealth. You're already the person who has what you desire. Opportunities find you easily. You act when it matters and trust when it flows. In front of you is standing a version of you that has already mastered money. Money is your slave now. You command money to come to you with confidence. You have power over money with calm. Notice how you stand, how you breathe, how you make decisions full of confidence, knowing fully well that every step you take takes you closer to your goal. Step into it once again, merge with that feeling. Feel that certainty that you command money to come to you, and you do it with ease. Let your body feel that certainty. From the state of certainty, ask silently of yourself, what is the one action that you should now take? Trust the response, the first response. Once again, ask yourself, what is that one action that you must take? Just receive the answer. Trust the first response or the response that tugs you most. Now see your body glowing. It has a magnetic field. Money, opportunities, people, ideas are drawing towards you naturally. They are all coming closer and closer to you. Money, opportunities, people, ideas are now drawn to your frequency. Because you're matching that frequency.
You're vibrating at a higher frequency, at the frequency of money. I'll count till 5, from 1 to 5. And at the end of 5, the new version of you will be back. Accept it, allow it. 1, you're beginning to become aware of your body. 2, breathe deeper. 3, allow a gentle movement in your fingers and toes. 4, your awareness is returning. And now, when you open your eyes with a smile, you have made yourself a money magnet. 5, you may gently open your eyes and say, "It is done, I receive." You are a money magnet now. Remember to command money. Money is your slave, remember. You just have to command with confidence. And anytime you need a direction, remember to close your eyes, take a deep breath in, and as you breathe out, the first thought that comes to you, that is the direction you are seeking. You may open your eyes. Gently rub your palms and touch your eyes and know that today is a wonderful day. Thank you. So nice to see Anuradha. Perfect meditation, short meditation. Very good. Well done, सुष्मिता जी. छोटा सा और स्वीट सा मेडिटेशन था, तो बहुत बढ़िया रहा. तो अभी अनम्यूट से म्यूट Thank से you. हटा. तो सभी लोग अपना अपना दे सकते हैं पावरफुल वर्ड. छोटा Thank you. पैकेट बड़ा धमाका. Very sweet and mesmerizing voice. Thank you. Thank you. I God hope bless. आप लोगों को कोई आंसर मिला होगा. Saloni, how are you? Vidyavati ji, first time I'm seeing you. Yes, madam. Thank you, madam. It was wonderful, madam. Wonderful, heart touching. Thank you so much. Thank you. It is a fantabulous, ma'am. Sushmita, ma'am, you are rocking. Your voice modulation is touches our heart.
Thank you, Dr. Padmavati. Thank you so much. Thank you, Sushmita. Very magnetic. Saluni, Mera Saluni. Abhi I'm in deep sleep. ठीक है. Thank you, Namita. Thank you. All of you, thank you so much. And lots of love to all of you and good luck. चलिए जी, अभी तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है अभी। ओ टाइम है? हाँ हाँ, जल्दी खत्म किया मैंने. ओके. अच्छा, तो फिर मैं पूछ रही हूँ क्या एक बात. Did you all get any guidance? Did गाइडेंस anybody get any guidance during the meditation? वो डिस्कम्फर्ट पता चला. समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये थॉट नहीं है मनी के लिए, बट वो आपके अभी आपने बोला ना, तो वो थॉट आया. वो जैसे मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था वो थॉट है. Okay, okay. So you can work on that then, है ना? यस यस. हाँ. और कोई? आपने सबको मनी मैग्नेट पहले ही बना दिया है. मैंने नहीं बनाया, सब अपने आप बन रहे हैं और यहाँ पे डेली मेडिटेशन कर रहे हैं. हाँ हाँ, Daily meditate मतलब कर रहे आप जरिया बन के आए हैं, सबने सब बन गए अपने आप से. हैं. ये लोग मेरे लिए जरिया बने हैं यहाँ पर कि मैं इनके साथ में यहाँ पे आया हूँ और Correct. इनकी वजह से मेरे में सुधार आया है. तो ये लोग जरिया बने हैं मेरे लिए सर. Very nice. सुष्मिता मैम, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रही हूँ बस. And, मेरा मेरा वो हीलिंग जारी है. करती मतलब आते रहते हैं मेरे पास लोग. और मैं आर्ट क्लासेस भी कर रही हूँ आजकल, विच इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू द डिटेल्स. सो आई एम डूइंग फाइन, क्वाइट फाइन, बट आई वांट टू डू बेटर ऑफ कोर्स. ओके मैम, बहुत बढ़िया. आफ्टर प्रदीप सर की क्लासेस के बाद सब लोग इन्हीं सब कामों में बिजी हो चुके हैं और अपना जीवन और बेहतर करते चले जा रहे हैं. Yes, 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 that is true. Thank you, everyone. Thank you so much. तो And सबने तो थीटा हीलिंग सीखा ही है ना. I find it easier nowadays to just close my eyes and feel the energy of the creator of all that is. And I find धन की वर्षा हो रही है. So yes. तो स्नेहा का भी 6:30 बजे आती है स्नेहा. थोड़ा सा Oh, I thought कि 20 मिनट का करना होता है, तो मैंने उस हिसाब से किया. नहीं, हमारे यहाँ तो 30-40 मिनट का हो जाता है डेली. ओह अच्छा अच्छा, इसलिए. ओके ओके. पहले आपने मुझे ना ऐसे ही बोला था, मुझे यहाँ तक याद है कि 20 मिनट वाला. हाँ, अराउंड वो डिम्पल मैम आती थी जब ना, तो डिम्पल मैम 6:30 बजे तक अपना ज्वाइन करती थी, तो उनके लिए हमने 30 मिनट्स का टाइम था तब भी हमारा. हाँ 6:30 तक का. हाँ. मैम, इसका आप हिंदी वर्जन भी बना के डालिए यहाँ पर. ओके. हाँ हिंदी वर्जन भी कर दीजिए इसका. ठीक है. ठीक है, मैंने लिख के तो रखा है, तो मे बी उसको बस आई हैव टू जस्ट. ठीक है, कर लेती हूँ हिंदी वर्जन. इसी ग्रुप में डाल भी दीजिए. ठीक है ठीक है. तो जी, बस थैंक लिख के डाल दूँ? जी. लिख के डाल दूँ कि बोल के डाल दूँ? दोबारा नहीं, करा तो देना ना. आपकी आवाज ही तो प्रिय है, आ, आपको चाहिए है. अच्छा. दोबारा करा देना हिंदी में. हाँ हाँ ठीक या है फिर करा दीजिए एक बार, कभी भी समय निकाल के. जी. ठीक है, हिंदी में 30 कर मिनट्स का लेंगे. करवा दीजिए.
30 मिनट्स का करा दिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। 30 मिनट्स, हाँ हाँ, इसी में और जरा I'll add a few more things और उसको हिंदी में कर, ठीक है, पूरे पूरे को हिंदी में कर लूँ। जी, थैंक यू सो ये मच मैम। तब तक हम अपना पावर बुक का थोड़ा सा कल के बारे में थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूँ। बाई चांस अगर कल कोई नहीं आया था तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक, जैसे आप ये स्टार्ट करते हैं हम दोनों। चलिए, एग्जाम्पल था हमारे सामने कि सबको की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ये एक बार मैं दोबारा बताने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आज हमारे पास टाइम है तो कोई है हमारे पास में जो कुछ बताना चाहे आज का, आज के लिए अपना कोई शेयरिंग करना चाहे, कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है किसी भी तरह की, किसी के पास कोई शेयरिंग है अपनी, क्या जिसको कोई बेनिफिट हो रहे हो कुछ, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहे मैजिक बुक से, पावर बुक से। मैं समझना चाह रहा हूँ कि हम ये जो कर रहे हैं इससे किसी को बेनिफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बताओ जी। कोई भी नहीं है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा अभी तक। जीवन में सर प्यार ही प्यार बढ़ गया है। बेनिफिट पहले बहुत आपने हो रहे हैं। धन की वर्षा करवा दी और फिर हर खुशी और क्षेत्र में प्यार। बेनिफिट हो रहे हैं। तो थैंक यू सर, रीमला जी, थैंक यू। यहाँ पे मतलब कि सब लोग हैं या बस कैमरा ऑन कर, कैमरा बंद करके इधर उधर हो रखे हैं, उनको आवाज ही नहीं जा रही मे भी। पहले नहीं मिले थे, कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद ऐसे लोग मिल रहे हैं, मतलब बहुत पुराने पुराने बिल्कुल बचपन के, मतलब तो वो भी हाँ, बहुत बचपन वाले दोस्त आ रहे हैं ना, मेरे भी ऐसे निकल निकल के सोए सोए जाग रहे हैं जो 10-10 साल से नहीं बात कर रहे थे। अब सोच भी अपने नहीं आप सकते। हाँ, वो लोग मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के और बहुत अच्छी वाली फीलिंग के साथ। मेरे को तो प्रपोजल्स आ रहे हैं, आजा। अभी पीछे मेरे को एक दोस्त मिला था, पेप्सी कंपनी में काम करता है, कह रहा है लुधियाना आजा मेरे पास में यहाँ पर। और मैं, बहुत रिच है वो काफी, उसका काम अच्छा है और उसके बच्चे भी बहुत सेटल्ड है, बहुत बढ़िया से। और मेरे से एज में काफी बड़ा है, लेकिन फ्रेंड है। वो कह रहा है आजा मेरे पास में एक बार तो मिलने आ। मैंने कहा 10 साल बाद तुझे मेरी याद आ गई। कह रहा मैं तेरा नंबर ढूंढ रहा था इतने सालों से, और कैसे करके तेरा नाम देखा सोशल मीडिया के ऊपर और उसके थ्रू मेरे को नंबर मिला। मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया, मैं इसके थ्रू वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने मेरा नंबर ढूंढा। कह रहा है अराउंड 2-3 साल से मैं सर्च कर रहा था और 3 सालों बाद तेरा नंबर मेरे को मिला है। और ऐसे ही मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। एक मेरे फ्रेंड है वहां से, उसका भी ऐसे ही कॉल आया, वो भी मेरे को सर्च करके उसने भी मेरे को ढूंढा। एक और कंपनी में कल उसका कॉल आया, जो 3-4 सालों बाद उससे मेरी बात हुई। तो ये तो आपने सही चीज कही प्रिया जी। तो बड़े सारे फ्रेंड्स पुराने दोस्त ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों ढूंढ रहे हैं, मेरे को भी ये समझ नहीं आ रही। मुझे भी यही कह रहे थे, गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव हमारे पास शिफ्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब नहीं, तो वो कह रहे हैं कुछ दिन आके हमारे पास रहो, देखो, एंड देन यू थॉट अबाउट, थिंक अबाउट इट। आई सेड ओके। मेरा पेप्सी वाला फ्रेंड कहता है कि तू आ जा, मैं तेरे को गाड़ी भर के ट्रॉपिकाना की पेटियां मैं तेरे उसमें गाड़ी में डाल दूंगा फुल जूस की।
तू लुधियाना आ, तेरे लिए मैं पूरी गाड़ी फुल करके, मैं कहा मैं क्या करूंगा इतनी ट्रॉफी खाना, कहता अपने फ्रेंड सर्कल में बांट देना। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो अपने आप मैं तो मतलब अब मैं सोचूं कि ट्रॉपिकाना जूस आ रहा है ऋषि के साथ तो गुड़गावा कहता है कि कभी गुड़गाना हो तो मुझे बताना, मैं लुधियाना से गुड़गावा पहुंच जाऊंगा, मैं वहां से तेरे को दिलवा दूंगा। वहां से जब भी गुड़गावा आना हो, सैटरडे संडे गुड़गावा आ जा, वहां से फुल तेरे को गाड़ी की जो है ना तेरी डिक्की में, मेरी अमेज गाड़ी है तो उसकी डिक्की बहुत बड़ी है। वो कह रहा नहीं कोई बात नहीं, उसमें फुल कर रही है ट्रॉपिकाना, आओ एक बार आओ तुम मेरे पास में। चलो ठीक है आएंगे। तो अब मेरे ख्याल से 6:33 हो चुके हैं, और स्नेहा तो मुझे लग नहीं रहा अभी आएगी। तो अनुराधा जी रेडी, अनुराधा जी एवर रेडी है इसके लिए। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो राधा मच। जी है ना हमारी। हाँ जी। तो चलिए अनुराधा जी, आगे ओके। का हम आज का स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जाम मान मान ले से लें, स्टार्ट करते हैं। मान लें आप किसी, पेज नंबर, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज अच्छे आ से। रही, ठीक। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है, तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं न दें, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दें। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वस्थ स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। आगे पढ़ो। जब हाँ आप जी पढ़ो पढ़ो। हाँ, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हों, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप तो संतान अब ना ये एक सेकंड दादाजी। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे अपनी तरफ आकर्षित करनी है चीजें। तो एग्जाम्पल यहाँ बताए जा रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, ये बीच में वॉइस किसकी आ रही है? प्रिया सेठ, प्रिया जी म्यूट कर लीजिए। तो जैसे अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आपको नजर आ रहा है सामने किसी का स्वस्थ शरीर, तो उसके गुणों के बारे में प्रेम करना शुरू करो। उसका शरीर देख के कि वाह कितना छरारा बदन है, कितना बढ़िया है, फिजिकल कितना फिट है ये। और इस तरीके से आप उसको अपने अंदर ला सकते हो उन चीजों को। जब आप उसके गुणों से प्रेम करना शुरू कर देते हो, तो हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप पैसे वाला बनना चाहते हो, मैं चाहता हूँ, तो आज मुझे ये समझ आ रही है कि हमें तो मुकेश अंबानी को ले लेना चाहिए इसके लिए।
मुकेश अंबानी को देखो और उसके जो बिजनेस स्किल्स है उससे हमें प्रेम हो जाना चाहिए कि उसके बिजनेस स्किल्स कितने स्ट्रांग है। मे भी हो सकता है उसके अंडर कोई ऐसा हो, हमें नहीं मालूम कि मुकेश अंबानी है या उसके अंडर काम करने वाले ऐसे लोग उसके पास में है जिनकी वजह से वो हम लोग तो डेली इंक्रीज करने की बात करते हैं, वो डेली एक नई कंपनी खोल रहा होता है। तो हमें इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए कि कौन है उसके पास में ऐसा, ये चीज हमें ढूंढनी चाहिए कि ऐसा कौन है उसके पास में, ऐसा अलादीन का चिराग कौन सा है कि वो रोज थोड़े दिनों में एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा होता है और इतने फंटेस्टिक तरीके से करता है कि बड़ी जल्दी से उसकी कंपनी बड़ी हाइप पे चली जाती है। तो ऐसा क्या है? तो अगर पैसे वाला बनना है तो ऐसे ही पैसे वाले लोगों को ढूंढना शुरू करो। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग को देखो, उसके बारे में समझो, उसके गुणों से प्यार करना शुरू करो अगर वहां तक हमें जाना है। कैसे कोई बिजनेस एक्स्टेब्लिश कर रहा है, कैसे कोई बड़ी जल्दी से यूनिफॉर्म हुआ है और बड़ी जल्दी से आगे बढ़ा है अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, ऐसे लोगों को ढूंढो। क्योंकि हमें भी रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाना है। तो रॉकेट से स्पीड से कौन ऊपर पहुंचा है जल्दी से, कौन ऐसा है बिजनेस टाइकून बन गया है बड़ी जल्दी से, विद इन 4 to 5 years वो बिजनेस टाइकून बना है। क्या उसके पास में ऐसे कौन से उसके पास में गुण है, ऐसे कौन से उसके पास में चीजें हैं जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी पहुंचा है। तो उसके लिए प्रेज करो, उसके गुणों के गुणगान करो, उसके बैठो और सोचो और उसके लिए उसको अट्रैक्ट करो। जो उसके अंदर है वो हमें खींचना है अपनी तरफ, है उसको मैग्नेट की तरह हमें अपने पास में लेके आना है। तो पावर बुक समझा रही है आज हमें ये चीज करनी है। कुछ दिन पहले मैंने वो जो हम स्टेडियम का करते हैं ना, तो मैं स्टेडियम के अंदर मैं एक दिन ऐसे ही मैंने किया था कि मैंने मुकेश अंबानी को, उसकी वाइफ को, उसके बेटे को और जितने भी दुनिया जहान के मिलियनियर बिलियनर मैंने सबको बुलाया था, इनवाइट किया था। और साथ में मैंने यूट्यूबर्स और इन लोगों को मैंने इनवाइट किया था। तब मेरे मन में एक बार आया था और मैंने वो किया था कि मुकेश अंबानी मेरे को और उनकी वाइफ जो है वो वहां से ग्रीन कलर मेरी तरफ भेज रही है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने वो एक दिन किया था तो मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए थे उस दिन और मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। लेकिन बाय चांस उसके बाद में मैंने वो चीज़ दोबारा से नहीं की। तो आज मुझे याद आ रहा है कि वो एक बार करने से मेरे को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था, 3-4 दिन के अंदर अंदर बहुत बढ़िया मेरे को ऑर्डर्स आए थे। तो ये चीज़ ना हम लोग करते हैं, कई चीज़ें करते हैं लेकिन हम उसको ना कॉन्टिन्यूस नहीं रखते। हम उन चीज़ों को कंटिन्यू अगर रखें हमारे लिए और एक फोकस होके करेंगे ना, तो हमारी चीज़ें हमारे लिए वो बेटर होने वाली है। तो हमें आज मैंने ये पढ़ा है तो अब इसको फोकस तरीके से कैसे लेके जाना है वो हम समझते हैं और आगे करते हैं उसको लाइफ के अंदर में कि हमें क्या बनना है। तो यहाँ पर कई लोग हैं जिनको मालूम है कि अब समझ आ रही होगी ये पढ़ के या सुन के कि क्या करना है लाइफ के अंदर और किस तरीके से आगे चलना है। मुझे एक फेस नजर आ रहा है जो कर रहा है ऐसे, तो तो समझ गए वो, मुस्कुरा भी रहे हैं, तो ठीक है जी। तो चलिए अपने अंदर सबको लेके आना है ये सारी चीजें ना, जो हम समझ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर हमें ये चीजें लेके आनी है। कि अब ये देखो पावर बुक बता रही है, कितने अच्छी अच्छी चीजों से बता रही है। एक उन्होंने कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, एक हमें हॉर्स का जो उन्होंने दिया कि अब बना लो अपने लिए पूरा हॉर्स को लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर में। और फिर कुछ ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं पावर बुक में। और ये सारे जितने भी है ना सारे पावरफुल है। हम इनके अगर हम यूज करना सीख गए ना और हमने इनको यूज कर लिया तो अपनी लाइफ को लाला बनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता हमारी लाइफ को ऊपर लेके जाने से। तो अपनी लाइफ झिंगा लाला बनानी है तो ये जितने एग्जाम्पल है इनको एक बार फिर से अच्छी तरह से, जो हम यहाँ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बार जो हाईलाइटेड
यहाँ पर हैं उनको हमें एक बार फिर से ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए दोबारा से, और दोबारा से नहीं कई बार पढ़ना चाहिए हमें, बार बार, ताकि हम इन चीजों को अपने अंदर लेके आ सके और अपनी लाइफ को और बेटर कर सके। हाँ जी। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चों के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है, ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कर रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों को की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हों, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। जीवन तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे लिखा जा रहा है कि अब आपको करना क्या है। जब आप अपने सपनों की कार देखते हैं, जो एग्जांपल में ऑलरेडी पहले आया था कि सपनों की कार देखते हो, तो उसके मालिक के बारे में नहीं सोचना कौन है कौन नहीं मालिक, हमें उस कार को चाहिए, हमें वो कार चाहिए, सपनों की कार हमें अपने नजदीक लेके आनी है। तो सपनों की कार के बारे में सोचना है, उसके लिए हमें उसके इंटीरियर को देखना है और उससे प्रेम की भावना में उसे लेके आना है, उस कार को अपने नजदीक लेके आना है। तो क्योंकि अगर रिलेशनशिप ठीक करने हैं, तो एक ऐसे हैप्पी मैरिड कपल की तरफ देखना शुरू करो जिसको देख के हमें लगे कि वाह, इनका तो बस जब देखो हंसते मुस्कुराते खेलते रहते हैं, जब देखो बाहों में बाहें डाल के घूमते रहते हैं, जब देखो एक ही थाली में खाना खाते हैं, जब देखो पार्टी करते रहते हैं, और इनका वंडरफुल एक्सपीरियंस देख के तो बड़ा मजा आ जाता है। तो अगर अपने रिलेशनशिप शिप ठीक करने हैं, तो ऐसे ही किसी मैरिड कपल की तरफ देखना शुरू कर दो। अगर मैरिड चाहते हो कि शादी हो जाए जल्दी से, तो न्यूली मैरिड कपल्स को देखना शुरू करो, उनके बारे में जानना शुरू करो। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको बहुत सारी रील्स मिल जाएंगी जो न्यूली कपल डालते हैं, तो उन रीलों को देखना शुरू करो। ऐसे ही मैरिड कपल्स भी यही कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के ऊपर इधर उधर की चीजें देखने की बजाय मैरिड कपल्स जो इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी तरफ देखना शुरू करो और उनको प्रेज करना शुरू करो, उनके लिए प्रेम भाव लेके आओ और उनको देख के कहो कि वाह कितनी इनकी वंडरफुल लाइफ है, वाह क्या बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, देखो कितना अच्छे से दोनों प्यार से कितने साथ में एक दूसरे के साथ में खाना खा रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों घूमते हुए, एक हाथ में हाथ डाल के दोनों जने चल रहे हैं। तो ऐसे ही सुखी दंपत्ति के बारे में देखो। आदर्श शरीर चलाते हो तो ऐसे शरीर को देखो जो आपको लगे बड़ा फिट एंड फाइन है, अरे वाह इस एज के अंदर भी इतनी स्फूर्ति, इतना वो, देखो कितना टैलेंटेड है, कितना बढ़िया से ये सारे काम कर रहे हैं, देखो जिम के अंदर जा रहे हैं और कितने अच्छे से इस एज के अंदर भी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मलाइका अरोड़ा को देख सकते हो कि वाह एज और उसमें कितना डिफरेंस है कि वो लगते ही नहीं 50 साल की होगी लेडी। तो ऐसे करके आप देख सकते हो इन चीजों के बारे में, ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्या था आगे। क्या मैम, मुझे पता है। बच्चे हाँ। बच्चे एक मिनट, बच्चा चाहिए अगर आपको, तो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को देखना शुरू करो, उनके वीडियोस देखना शुरू करो, बच्चों के बारे में समझना शुरू करो। अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कभी आपने बच्चों से हेट किया था? मेरे पास एक पेशेंट आया था ऐसे ही, जो
उनका कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को उनको समझाना पड़ा कि आप बताओ क्यों। पहले तो मैंने उनसे पूछा मेटा कोस्टिंग में पता चला कि भैया वो बच्चों से बड़ा नफरत करती रही लेडी। बच्चे जब भी खेल रहे होते थे कुछ भी घर के पास में, तो बच्चों से बड़ा हेट करती थी। बच्चों को अपने नजदीक नहीं आने देना, बच्चों के लिए मतलब कि हमेशा बुरा भला कहना। तो जब ऐसा करने लगी तो यूनिवर्स को लगा कि भैया ये तो बच्चों से हेट करती है, अगर अपना बच्चा भी इसके पास हो गया तो ये तो उसके साथ भी हेट करेगी, तो फिर बच्चा देने का फायदा ही क्या है। तो लेकिन अब शादी हो गई, 15 साल होने वाले और बच्चा नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं अभी। फिर उन्हें समझाया गया कि इस तरीके से आपको करना है, पहले तो बच्चों से प्यार करना शुरू करो। सबसे पहले अगर अपना बच्चा चाहिए तो पहले बाहर के जो दूसरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लो, उनको खिलाओ बच्चों को। कोई आस पड़ोस में देखो जिसके यहाँ पे छोटा बच्चा हो, उससे आपस में मिलना जुलना चालू करो। देखो आपके आसपास में कहीं किसी का बच्चा है तो कैसे भी किसी भी तरीके से उनसे रिलेशन बढ़ाओ, कैसे भी उस बच्चे को हाथ में लो और उस बच्चे के साथ खेलना शुरू करो, उस बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम बिताना शुरू करो, ताकि आपका लगाव बढ़ना शुरू हो। और जब उन्होंने इस तरीके कई जो उनको समझाए गए तरीके वो उन्होंने किए, तो वो प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद में अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है अभी। तो अभी होने वाला होगा और 2 4 6 महीने के अंदर, 2 4 महीने के अंदर। तो इस तरीके से ऊपर वाले ने उसको बच्चा भी दिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइक ए थेरेपिस्ट भी हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, पावर बुक के अंदर समझने के लिए कैसे हम अपनी थेरेपीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम इन चीजों को ला सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य चीज चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। जब हम प्यार भरी नजरों से देखते हैं ना, तो जब हम प्यार लेके आते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमारे अंदर अपने आप मैग्नेटिक पावर्स बढ़नी शुरू हो जाती है और मैग्नेटिक पावर्स उस चीज को हमारी तरफ खींच के लेके आती है। हमें हो सकता है वही चीज मिल जाए या हो सकता है उसके जैसी सेम चीज हमारी लाइफ के अंदर आ जाए। मान लो गाड़ी आप देख रहे हो किसी की और गाड़ी आपको बहुत पसंद आ रही है, मान लो आप देख रहे हो कि फॉर्चूनर, वाओ क्या बात है, इतनी बढ़िया फॉर्चूनर, उसके अंदर में क्या इंटीरियर है, क्या उसका एसी है, क्या लेदर सीट से, वाओ देख के तो मजा आ गया। जब उसको हम देख रहे हैं, उसके इंटीरियर को पसंद कर रहे हैं और उसके लिए अब फोकस है। ये नहीं कि एक दिन ऐसा किया और उसके अगले दिन में कोई दूसरी गाड़ी पसंद आई तो उसके दूसरी गाड़ी के कि चलो जी मेरे को गाड़ी तो कोई भी आ जाए, मेरे को तो चाहिए, बस गाड़ी चाहिए, लेकिन आए कोई भी। आज एक गाड़ी, कल दूसरी गाड़ी, कल तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, नहीं, एक गाड़ी पे फोकस रखता है हमें। फोकस, चाहे गाड़ी लेनी है तो एक गाड़ी पे फोकस रखना है। घर लेना है तो आप घरों को प्यार कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो कोई भी घर चलेगा ना। हर घर एक जैसा नहीं होता। ब्रांड तो एक जैसा ब्रांड लेके आ सकता है, गाड़ी तो एक जैसी। अब फॉर्चुनर है तो फॉर्चुनर तो ऐसे 100 होंगी, एक जैसी हजारों होंगी, तो वो तो आ सकती है। लेकिन घर तो हमारे एक जैसे नहीं बने हुए ना, सबके अपने अपने हिसाब से बने हुए। तो उन चीजों के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक उसमें सांचे में एक तरह से बन के नहीं आए, वो अलग अलग बन गए। तो आपका कैसा होगा वो आपकी लाइफ में अपने आप आएगा जब आप, हाँ लेकिन ये कि आप बंगले को प्यार कर रहे हो तो फिर बंगला भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि बंगला नहीं आ सकता। यूनिवर्स हमें बताता है कि सारी चीजें जो है आप जो सोच सकते हो वो आपको मिल सकते हैं। आपकी सोच कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, लेकिन उस सोच के ऊपर हमें फोकस रहना है। उस सोच को हमें डेली करना है, उसको हमें अपनी लाइफ के अंदर, ये नहीं कि थोड़े दिन किया छोड़ दिया फिर कहीं और भटक गए, उसके बाद में फिर वापस से उसके ऊपर आ गए, फिर 4 दिन किया फिर कहीं और भटक लिए। ऐसा नहीं करना है, तो बड़ा फोकस होके करना है और तब तक करते रहना है जब तक ये हमारे पास वो चीज हम खींच के ला नहीं सकते। कई बार क्या होता है हमें टाइम हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो तो चीज हमारे बिल्कुल नजदीक आ गई थी और हमने उसको छोड़ दिया, बस वो जैसे ही छोड़ा तो वो इनविजिबल वैन के अंदर है, वो गई। हमें तो उस जो हमारा एक लक्ष्य है हमें उसको भूलना नहीं है, चाहे उसके लिए हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन अगर हमें पाना है, पाने की जिद है। तो वो एक हमारा डायलॉग था एक फिल्म का, जिस चीज को आप पाने की शिद्दत से कोशिश करते हैं तो सारी कायनात उसको आपकी तरफ ले जाने की साजिश करती है। तो वो एक डायलॉग है ना, तो सारी कायनात लग जाती है जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से पाना चाहते हो।
तो सारी कायनात आपके पीछे वो सारे काम करती है अदृश्य जगत के अंदर, कि वो कैसे भी आपके लिए वो चीज लेके आए। यूनिवर्स को बनाया ही ऐसा गया है, या यूनिवर्स को हमारे लिए ऐसा बनाया गया, यूनिवर्स ने हमें ऐसा बनाया, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको हमारे लिए ऐसे क्रिएट किया गया है कि तथास्तु, जैसे यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तो जब मैं कहता हूँ आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, तो जब ऊपर वाले ने बनाया तो यूनिवर्स को भी हमारे लिए उन्होंने इसी तरीके से, और हमें यूनिवर्स के लिए बनाया, तो दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है कि यूनिवर्स हमारे हर ओके के लिए तैयार है, तथास्तु देने के लिए तैयार है। बस हमें अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल की तरफ से हटना नहीं है, अपने गोल की तरफ हमें हमेशा लगे रहना है, गोल की तरफ। हाँ जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। स्नेहा आई, स्नेहा नहीं आई ना आज? आ रही है मेरे स्नेहा? आई नहीं, आई नहीं आज। चलो। हाँ, वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं, उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। रेनर मरिया रिल्क, 1875 to 1926, लेखक और कवि। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है, वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। तो इसमें आया एक वर्ड, वो मुझे कौन बताएगा कि इसमें ऐसा कौन सा एक वर्ड आया? कोई बताएगा मेरे को? किसी को आया कुछ, एक ऐसा एक वर्ड आया इसके अंदर में जो डिफरेंट क्रिएट कर सकता है लाइफ के अंदर? ये चमत्कार। जो भी 3 लाइनें हैं उसके अंदर में ऐसा एक वर्ड आया है। चमत्कार। और कोई? वास्तविक प्रेम। वास्तविक प्रेम। डॉक्टर किरण ने बिल्कुल सही पकड़ा, वास्तविक प्रेम। देखो, फेक इट अंटिल मेक इट हर जगह नहीं चलता है। अब फेक इट करके हम प्रेम को, ठीक है, एक थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए ला सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम यानी कि हमें अपने आप को पूरा अंदर से लेके बाहर तक, हमारा अगर रियलिटी के अंदर प्रेम है, हम सोच कुछ अलग रहे हैं, हम बोल कुछ अलग रहे हैं, हम कर कुछ अलग रहे हैं। मैं ऊपर से तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत प्रेम से बात करता हूँ, मैं सब प्रेम ही प्रेम है मेरे लिए। मैं यहाँ पर बैठ के यहाँ पर रोज 1 घंटा मैं प्रेम के बारे में कहता रहता हूँ, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही। और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाद में ईर्ष्या लेके आ रहा हूँ, बाद में जेलसी लेके आ रहा हूँ, बाद में लोगों के लिए अलग अलग बातें कर रहा हूँ। और उससे क्या हो जाएगा? क्या मैं कभी ला पाऊंगा अपने अंदर चेंजेस? नहीं ला पाऊंगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा सबको समझा रहा हूँ, और ठीक है मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अपने अंदर धीरे धीरे मैं कुछ चेंजेस लेके आ रहा हूँ, मैं अपने आप को धीरे धीरे बदल रहा हूँ, चाहे मैं रोज का 1% बदल रहा हूँ, चाहे 2% बदल रहा हूँ, चाहे थोड़ा सा 1 पॉइंट अपने अंदर भी चेंज लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पे 1 घंटा अगर मैं सबको समझा रहा हूँ, और उसमें से 1% या 1% का भी अगर मैं 1% कहूँ, मैं अगर उतना भी अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा हूँ, और मैं वो सारी चीजें धीरे 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 इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य है वास्तविक प्रेम तक पहुंचने का। अगर मैं उसको पा लेता हूँ वास्तविक प्रेम को, तो फिर ये जो चीजें हैं मेरे लिए, जो चमत्कार बार बार होता है, वह जितना ज्यादा देते होंगे उतना ही ज्यादा होता, तो ये हमारे लिए होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ छल कपट कर से यहाँ के मैं समझा के चला गया, मैंने सारी चीजें कर ली छल कपट से, और उसके बाद में मैं फिर जब लोगों के साथ में मेरा बिहेव है वो एक अलग तरह का बिहेव चल रहा है, मैं हर एक के साथ में
उससे जेलसी कर रहा हूँ, मैं हर एक के साथ में उसको परेशान कर रहा हूँ, मैं हर एक इंसान की बुराई कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा कुछ ला पाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर? नहीं ला पाऊंगा। कोई बताएगा मैं क्या ला पाऊंगा ऐसा कुछ अपने अंदर, लाइफ के अंदर? क्या मतलब कि मैं फेक इट अंटिल मेक इट करते हुए हो सकता है थोड़े दिन तो सरवाइव कर जाऊं, लेकिन थोड़े दिन के बाद में मैं वो चीजें ना कर दूं, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये फेक इट हो रहा है। जो राजेश अरोड़ा यहाँ पे जो करने में लगा हुआ है वो फेक कर रहा है सारी चीजें। तो सबको एक ना एक दिन तो लगेगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो लगेगा या नहीं लगेगा? आप लोग बताओ मेरे को, ऐसा लगेगा ना? हाँ जी, कोई है? कोई बताएगा मेरे को ऐसा होगा या नहीं होगा? फेक इट अंटिल मेक इट। जी होगा, प्रदीप बिल्कुल सर होगा। ने तो हमें ये समझाया, फेक इट अंटिल मेक इट। तो क्या मैं फेक, ज्यादा टाइम तक उस फेक को मैं अपने फेक चेहरा लगा के, क्या मैं वैसा कुछ कर सकता हूँ? हेमराज जी बता रहे थे, कर सकता हूँ ऐसा कुछ? नहीं सर, ज्यादा टाइम टाइम तक नहीं कर सकते, लेकिन जब अपन फेक करते हैं ना तो उसी भावना में अपन आ जाते हैं धीरे धीरे, और हाँ वही जी। भावनाएं अपने चलने लगती है। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी में ये चीजें करते हैं, जब हम आदमी का चेहरा सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए ही वो चेहरा वो यूज कर सकता है, वो फेक का चेहरा, लेकिन असलियत तो धीरे धीरे सामने आ ही जाती है, असलियत तो सामने निकलती ही है। तो जब असलियत निकलती है तो फिर क्या होता है, लोग उससे हेट करना शुरू कर देते हैं, लोग उससे हल्ला कटना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को जो है ना ये मतलब कि फेक इट अंटिल मेक इट सिर्फ थोड़े दिन के लिए। तो जैसे अब पीछे बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस के अंदर वो 2-3 महीने के लिए भेज देते हैं, तो वो एक्टिंग जो होती है वो कितने दिन तक चल सकती है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, इससे ज्यादा एक्टिंग तो नहीं चल सकती। 3 महीने के अंदर असली चेहरा निकल के आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से सामने वाले का, कि ये बंदा इस तरीके से, और ये फेक कर रहा था सारी चीजें। शुरुआत में इसने सारी चीजें फेक की, उसके बाद में उसका असली चेहरा समझ में आता है। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है, वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है। जब आप वास्तविक प्रेम अपने अंदर लेके आ जाते हैं, जब वो चीज क्रिएट कर लेते हैं, वो प्रेम भाव सबके लिए होता है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, दिखाने वालों के लिए नहीं, हर आदमी के लिए उसको वास्तविक प्रेम अपने अंदर धीरे धीरे अपने आप जागना शुरू हो जाता है। और जब हम ये वास्तविक प्रेम लेके आते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर चमत्कार भी होने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो जितना ज्यादा देता है उसके पास उतना ही ज्यादा होता है। तो रेनर मारिया, हेड्स ऑफ टू यू, आपने इतनी अच्छी बात कही जो आपने यहाँ पर लिखा, और ये आपका लिखा हुआ अमर हो चुका है। जब तक पावर बुक रहेगी, जब तक हम जैसे रीडर रहेंगे, हम आपका नाम इसी तरीके से बड़े रिस्पेक्ट के साथ लेते रहेंगे। जो आपने आज चीज लिखी है उसके लिए थैंक यू आपके लिए। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। एक एक का नियम, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फार्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होता है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, एक प्रशंसा। एक सेकेंड अनुराधा जी, मैं ना ये चीज ना एक बार दोबारा से पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे।
एक का नियम है बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के, मैं ये दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ, जरा आप लोग जरा ध्यान से और जरा इसमें ना लेके जाओ अपने आप को डीप में। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है। यानी कि आप ही हैं इस सृष्टि के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक आप ही है, आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसको थोड़ा सा डीप से समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अब जब हम लोग कहते हैं ना कि सामने वाला मेरे से प्यार नहीं करता, सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, सामने वाला मेरी कदर नहीं करता, तो उसके लिए जिम्मेवार हम क्या कहते हैं, वो जिम्मेवार। लेकिन नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेवार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, तो यानी क्रिएटर मैं हूँ तो मैं ही मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो सब कुछ मेरे इर्द गिर्द मेरे अकॉर्डिंग ही घूमेगा। जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही मेरे आसपास क्रिएट होगा। अगर मैं मैग्नेट हूँ तो मैं सब कुछ खींच रहा हूँ, अगर मैं मैग्नेट नहीं हूँ तो मैं अपनी सारी चीजें अपनी तरफ से दूर भेज रहा हूँ। अगर मैं प्यार कर रहा हूँ सबसे, तो सब लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं। तो हर एक के लिए मैं ही हूँ। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और ये बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है। तो आकर्षण का नियम आपका नियम है। ये आप सारी आज ये चीज जो है ना, ये आप अपने पास में इसको बड़ा केयरिंग से इसको ग्रैब करके किसी अच्छे से मखमल के कपड़े में लपेट के इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने दिल के अंदर ले जाओ। इस बात को अपनी पॉकेट में डाल लो, इस बात को कि आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, एक मखमल का कपड़ा लो आज और उसके अंदर इस बात को लपेटो और अपनी पॉकेट में डाल लो। अपने आप को इसके अंदर ग्रैब कर लो और इसके अंदर घुस जाओ। ये जो बात लिखी हुई है ना, इस जो इसके अंदर डीप चीजें हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लो। अगर ये चीज हमें समझ आ गई, जो आज ये लाइनें लिखी हुई हैं, इसको हमने अगर समझ लिया तो लाइफ हमारे लिए बड़ी इजी होने वाली है। जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें हमारे लिए बड़ी इजी होने वाली है। ये एक पैराग्राफ हमारी लाइफ के अंदर ट्रमेंडस चेंज लेके आ सकता है। हाँ जी, अब इसके बाद यहीं से पढ़ना राधा जी, ठीक है। हाँ, आप किसी दूसरे जी। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएं, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। तो जिससे प्रेम नहीं करते, बस उसके लिए सिर्फ यही है कि उसके लिए अपने आप को ना उसे ईर्ष्या करनी है, ना उसे जेलसी करनी है। बस अपना जो रुख है वो पलट देना है। आपको अगर वो चीज अच्छी नहीं लगती, आप उसको प्रेम नहीं करते, तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा अपने आप को यू टर्न ले आओ, थोड़ा सा अपने आप को मोड़ लो। बस हमें क्या है, अपनी फीलिंग्स को हाई रखना है। हमें
नेगेटिविटी में नहीं जाना, मेन इसका मतलब यही है। नहीं प्रेम करते तो उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। वो आपकी तरफ ना आकर्षित होगी, ना आपसे दूर जाएगी, वो बस जाए वहां स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर चीज को, किसी चीज को चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो, तो बस उसकी तरफ प्रेम भरी निगाह से देखना शुरू कर दो और उसके साथ में प्रेम करना शुरू कर दो। यही मैजिक बुक ने हमें सिखाया कि क्या करना है, हमें कैसे करना है। और यही पावर बुक हमें बता रही है कि हमें कौन से एग्जाम्पल जो है हमें अपनी लाइफ के अंदर अब फिट करने हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप ये नोटिस करो कि कुछ हमें चाहिए होता है, वो हमें यहाँ पर वो जवाब मिल रहा होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जवाब निकल के आ रहा होता है। हमारी सोच, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको मालूम चल रहा होगा कि वो क्या सोच रहे थे और उनके लिए क्या जवाब आया यहाँ पर। तो जवाब हमें पावर बुक बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझा रही है सारी चीजें हमें। एक एक चीज का एग्जाम्पल बड़े अच्छे तरीके से दिया जा रहा है इसके अंदर। और आज ये हमें इतना गूढ़ रहस्य मिला ना, ये जो आकर्षण का नियम, यानी कि वो आप ही हो, आप ही के लिए वो नियम चालू है और आप ही हो सिर्फ एक यूनिक पर्सन इस पृथ्वी के ऊपर। वो सारे नियम वो सिर्फ आप ही के लिए। आकर्ष जो यूनिवर्स कहता है सिर्फ आप ही हो, उसके लिए हर आदमी, इंडिविजुअल पर्सन वो एक ही है। तो यूनिवर्स हमारे लिए इस तरीके से काम कर रहा है, आज हमें समझ आ रही है कि यूनिवर्स का तरीका क्या है। अब उस यूनिवर्स के तरीके को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो फिर क्या होने वाली है लाइफ? झींगा लाला होने वाली है ना लाइफ, झींगा लाला। तो अपनी लाइफ कौन कौन करना चाहता है झींगा लाला? कौन कौन करना चाहता है जरा एक बार चैट में मुझे पता तो चले। चैट में डालो जी, इसके लिए चैट में डालो। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन अपनी लाइफ को झींगा लाला बनाना चाहता है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आज हमारे साथ में होके भी नहीं है, तो मुझे पता चले कौन हमारे साथ इस समय है। तो जिसको लाइफ चाहिए झींगा लाला, तो वो लिखना शुरू करो जी। मी मी इशत जी, रितु जी, डॉक्टर किरण जी, प्रिया जी। तो जो जो लोग जाग रहे हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं भी लिख रहा हूँ मी। मेरा भी मी मान के चलो, मैं भी आ गया हूँ जी। सलोनी मेहता जाग रही है, अभी गहरी नींद में थी वो थोड़ी देर पहले, तो उठ गई है। डिवाइन हीलिंग अब झींगा लाला, ठीक है जी, अनुराधा जी। और कौन कौन आ रहा है? मी। तो सबको अपनी लाइफ झींगा लाला बनानी है, तो सबको समझ आ चुका कि बस सिर्फ आप ही हो। रिंकी आ गई, सिर्फ आप ही हो। ठीक है ना, आकर्षण के नियम और यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग सिर्फ आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अब अपनी लाइफ को अगर झींगा लाला बनाना है, तो बस 6 जने, 7 जने मैं यहाँ भी हूँ पर। सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, अभी आपका नाम आया था, तो सॉरी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया। चित्रा जी आ गया, डिवाइन हीलिंग अब ले पद्मावती रही जी है। भी आ गया, फर्स्ट मेरा था, फर्स्ट मैंने भेजा नहीं। पद्मावती जी का भी आ गया। हाँ जी आ गया जी, बिल्कुल आ गया, मेरे से बाय मिस्टेक निकल गया। आप भी सर उठा ही देते हो सबको नींद से। तो उठाना ही पड़ता है ना, तो वेकअप कॉल तो जरूरी चाहिए। देखो, एक करने के लिए करना है, एक सुनने के लिए सुनना, और एक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, बड़ी सारी अलग अलग चीजें हैं। तो जो गलती मेरे से हुई थी जब मैं मैजिक 4-5 बार मैंने की, जो गलती मेरे से हुई, तो मैं अब वो नहीं चाहता कि गलती आप लोग भी करो। 4 से 5 बार मैजिक की, सोते जागते जैसे मर्जी थोड़ी थोड़ी की, लाइफ में मैजिक्स हुए, छोटे छोटे मैजिक्स हुए। अब मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा था मैजिक्स सब, बस मैजिक्स, किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, सब शांत, बस आराम से बैठे हुए हैं कि भैया अभी तो हमें कुछ नहीं पता कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा लाइफ में। तो फिर नींदों में अगर रहोगे तो मैजिक्स कैसे होंगे? नींद में ही चलते रहोगे तो मैजिक कैसे होंगे? यहाँ पर आना, सिर्फ और सिर्फ आके यहाँ पर जूम अटेंड करना, और जूम अटेंड के अंदर नंबर बढ़ाना, उससे मैजिक लाइफ में कैसे हो जाएंगे हम लोगों के? अगर हम अलर्ट मोड में नहीं है, हम जो यहाँ कराया जा रहा है उसको नहीं समझ रहे,
तो हम सोचते हैं अरे कोई नहीं, समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, क्या जरूरत है, आगे बस उठ गए। आज हमने सिर्फ उठने का नियम बना लिया है कि राजेश के साथ हम उठ रहे हैं और यहाँ पे जूम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम कैमरा बंद करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं या सो जाते हैं। तो अलर्ट मोड में अगर हम नहीं रहेंगे तो जो ये रहस्य रोज नई चीजें खुल रही हैं, आज आप ये बताओ कि जो ये रहस्य खुला है, या पहले कभी किसी ने इस बारे में सोचा था? भाई मुझे तो नहीं पता था, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। जो आज ये बताया गया, आकर्षण के नियम के अनुसार सिर्फ आप ही हैं, बस आप। तो ये क्या किसी को पता था? रितु जी बता रही है, कह रही नहीं। मुझे पता था, वाओ, ये वेरी मैंने गुड। TikTok मारे भी हैं, 2-4 बार मारे हैं कि मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने वो बहुत तो मैं तो बोलते रहता हूँ, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ में। हम लोग अपने अपने साथ ही, हम मिरर के अंदर भी समझाता हूँ कि हम लोग हैं जो हमारे आसपास ही दुनिया घूम रही है, जो हम जैसा चाहते हैं वैसा। लेकिन उसका बहुत डीपली मीनिंग जो है ना, मेरे को जो आज ये यहाँ पे बताया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ये पावर बुक हमें बताने की कोशिश कर रही थी, जिसको मैंने दोबारा से एक बार पढ़ा कि बस आप ही हैं, ये मुझे तो इतना गहराई में मेरे को नहीं मालूम था, जो आज मेरे को पता चला। प्रिया को मालूम है, दैट्स गुड। तो लेकिन आज जो हमें ये पावर बुक ने ये एक चीज बताई ना, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। क्या मैंने ये भी ये कह सोचा रहा कि ना, संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो सिर्फ मैं हूँ? मैं तो सोचता था कि 143 145 करोड़ तो हमारे इंडिया के अंदर ही है, तो इतने हैं ना, और पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर 300-400 करोड़ लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। बाकी की जानवरों की, उन चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो लेकिन संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। ये लाइन जो है ना, बड़ी डीप लाइन जो लिखी गई है, ये आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है। तो मैं इस लाइन का मतलब समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या वाली, ये वाली लाइन जो थी, हमें कभी लाइफ में, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी ना कहीं सुनी। मेरी भी लाइफ अच्छी खासी निकल गई है, बाल सफेद हो गए हैं, थोड़े थोड़े से साइडों से भी सफेद है। तो ये मेरे बात को सही है सर कि जो बातें इस बुक्स में लिखी है, मतलब आपने जब ये शुरू किया था उसके जस्ट पहले मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ था, हाँ बिल्कुल जी, पढ़ी रही थी उस समय। ये सारी हाँ जी, बातें बाकी में किसी बुक्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेडिकल साइंस में भी नहीं है, आदर्श व्यवहारिक ज्ञान में भी नहीं है, सामाजिक लेवल पे तो और नहीं बची हैं, क्योंकि लोग कंपटीशन में जीने लग गए हैं आज की डेट में। हाँ तो जी। ये तो वाकई में कहना चाहिए कि 50 साल बाद तो मुझे मिल रही है, मैं भी 50 प्लस हो गई हूँ। तो मानना पड़ेगा कि अब हमें सही समय पे सही चीजें मिल रही हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकलने वाला है। मेन तो बुढ़ापा ही होता है। बुढ़ापा जो मेन है ना, सबसे मुश्किल जो चीज है वो निकालने की हमारी लाइफ के अंदर। बचपन तो बड़ा माँ बाप के प्यार से, दुलार से निकल जाता है। जवानी भी हमारी किसी ना किसी तरीके से भाग दौड़ की इस जिंदगी के अंदर निकल जाती है। जो एक ये जो थर्ड स्टेज है ना, वो थर्ड स्टेज निकालना सबसे मुश्किल काम थर्ड स्टेज है। और इस थर्ड स्टेज में आने से पहले पहले, या इस थर्ड स्टेज के आते ही अगर हमें ये चीजें पता चल रही है, तो लाइफ तो फिर तो वाकई हमारे लिए, मतलब कि ऊपर वाले ने हमें सही टाइम पर सही चीज और सही ज्ञान हमें मिलना जो शुरू हुआ है ना, तो हमें अपने आप पे पहली बात तो अपने पीठ थपथपा लेनी चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर रोज 20 से 25 लोग बैठते हैं, तो हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए इन चीजों के लिए कि हमें एक बड़े सही मौके पे सही चीजें करने को मिल रही है और सही चीजें सीखने को मिल रही है, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ आप लोगों के साथ में। मैं जैसे आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैंने मैजिक बुक की, मैंने एक बार नहीं कई बार की, 4-5 साल पहले। और अभी डिम्पल मैम ने भी करवाई थी, तब से मैं मतलब कि ये अलर्ट मोड में एक अपने आप को कहूंगा कि मैं अलर्ट मोड में आया हूँ। मैंने पहली बार जो 4-5 बार बुक की, तो सोते जागते इसी तरीके से कैमरा बंद करना, और उसके बाद में बस इधर उधर होते हुए अलर्ट मोड में नहीं रहता था मैं। जो मैं सही बता रहा हूँ, मैं अलर्ट मोड में कभी नहीं रहा। इवन मैंने जो कोर्स किया, मैंने पैसा खर्च किया, ये तो फ्री भी। मैजिक बुक कई जगह मैंने की, तो वो फ्री में मैंने भी की। और मैं इसलिए यहाँ पर
करवा रहा हूँ सब लोगों की। मॉर्निंग के टाइम में हम आराम से इजिली सब लोग सारे जने करें, तो मैंने भी ऐसे ही किया और मैं ऐसे ही हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो जब पैसा दे के मैंने कोर्स किया तो भी मैं मॉर्निंग के जो टाइम होता था ना मेरा, उसमें मेरा वही हाल था सेम, कि मैंने बस ओपन क्लास ज्वाइन कर लेनी, उसके बाद में मैं फिर अपना म्यूट करके, उसके बाद में मुझे नहीं पता 5 मिनट सुन रहा हूँ या 10 मिनट क्लास को सुन रहा हूँ, उसके बाद में कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ मुझे कुछ खुद को ही नहीं खाली पता होता कि 6 महीने मैंने 7 महीने ऐसे ही निकाले वो मॉर्निंग क्लास में भी। लेकिन जब से मैं अलर्ट मोड के अंदर यहाँ पर मैंने खुद ये डिम्पल मैम के साथ की, उसके बाद मैंने करवाई, तब मैं अपनी लाइफ के अंदर ना चेंजेस लेके आ पाया हूँ। और धीरे धीरे वो चेंजेस मे भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे शायद, या मुझे तो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आए। और मैं ये रोज कहता हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर। मैं ओपन और रिसेप्टिव मोड में चल रहा हूँ। और आप लोगों को भी जो मेरे साथ में अगर मई लास्ट मई से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर नजर आ रहे होंगे कि चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ के अंदर। और वो जो चेंजेस हैं शायद सबको क्लास में नजर नहीं आए होंगे, अभी नजर आ रहे होंगे 2-3 महीने से जब हम लोग सब कर रहे हैं यहाँ पर। इशत का हैंड्स रेज हो गया, वो आ रहा है उसका थम्स अप। अनुराधा जी भी मेरे को जानती है, मई ग्रुप में थी। तो और भी लोग यहाँ पे जो मई ग्रुप में थे, चित्रा जी है यहाँ पर, अनुराधा जी हैं, रिंकी है साथ में हमारे, नमिता जी हैं हमारे साथ में। तो इन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखे होंगे और वो मैं इन्हीं भी तीन, हूँ। हाँ डॉक्टर किरण भी है, सॉरी। तो सबने, डॉक्टर किरण भी देखो वहां बहुत कम आती थी, कैमरा बहुत कम ओपन होता था क्लास के अंदर। सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर किरण, कैमरा बहुत कम ओपन होता था तो। एक्चुअली में वही वही समय हमारा क्लिनिक का होता था, वही हाँ समय जी, हमारे हाँ जी। पेशेंट का रहता था, तो वही समय सबको सिखाने का रहता था। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मतलब कि वहां और यहाँ में अब डॉक्टर किरण ने, अगर चलो मेरे को वहां पे सिर्फ ऐसे ही सुना होगा कुछ है, तो आपको भी मेरे अंदर चेंजेस नजर आ रहे होंगे। ये 2-3 महीने के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो मेरी लाइफ में मेरे चेंजेस कोई नहीं ला सका। मेरे माँ बाप नहीं मेरे अंदर चेंजेस ला सके, मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सके। वो डोमिनेटिंग रहा मैं पूरी लाइफ के अंदर, पूरी, इवन अपने मदर फादर के ऊपर भी, फादर से भी मैं मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ तू रहा के कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं डोमिनेटिंग नेचर में था क्योंकि इकलौता रहा लड़का घर के अंदर। तो बचपन से ही जो अपनी जिद है वो पूरी करवानी, वो डोमिनेटिंग मैं रहा हूँ। लेकिन वो 3 महीनों में डोमिनेटिंग नेचर मेरा ये कैसे आज उड़ चुका है मुझे नहीं मालूम। वो डोमिनेटिंग नेचर कहाँ गया, वो फायर जो थी लाइफ की वो कहाँ गई। वो अपने अंदर में कैसे, या तो कर देना है। और पहले ऐसा होता था कि कोई मुझे कुछ कहता तो जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर देता था ना कुछ उसको बोल बाल के, तब तक मैं कभी चुप नहीं होता था। अपना मतलब कि अपने आप को सही साबित करने के लिए सब कुछ लिख देना, मैंने जो भी करना है कर देना। लेकिन आज की डेट में मैंने बड़ा चुप रहना सीख लिया कि लेट गो करना सीख दिया कि कोई, अब ठीक है जी, मेरे को इसके बारे में ना देना ही नहीं है जवाब। समझना है समझ लो, नहीं समझना तो कोई नहीं, लेकिन मैं इस चीज के लिए जवाब, मैं अपने आप को उस लाइन से नीचे लेके नहीं आने वाला, अपने आप को उस लाइन से ऊपर, उस लाइन को मैंने अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया है पूरी तरह से। मैं उस लाइन के अंदर ही जी रहा हूँ। उस लाइन से नीचे नो डाउट लाइफ में आती है, लाइफ में रोज चीजें आती हैं। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ फिर वापस से अपने आप को ऊपर खींच लेता हूँ। तो ये मैजिक बुक और ये पावर बुक ने मेरी लाइफ के अंदर ना ट्रमेंडस चेंज लाए हैं। और मैं इसीलिए आप सबको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अलर्ट मोड में रहना शुरू करो। मैजिक बुक जो ये आप, आज मेरे को सबको कहना पड़ रहा है कि हाँ जी बताओ बताओ बताओ, मैं रियलिटी बताऊं, मैं वहां पर जहाँ पे मैं कर रहा था और वहां मैं जब बैठता था ना, वहां पर मतलब कि कई पेज जूम के पलटने पड़ते देखने के लिए कि कैमरा बंद किसका है। सारे इतने अलर्ट मोड के अंदर वहां पे बैठते थे। और वहां पे कंटिन्यू, वहां पे काउंटिंग बढ़ रही थी वहां पे, अलर्ट मोड में रहने वालों की, कैमरा ओपन करना और सबने वहां पे बैठना। और जो लोग वहां सामने बैठा होते थे ना, उनके पास रोज का ये होता था कि मुझे बताना है आज मेरी लाइफ में क्या मैजिक हुआ, मुझे बताना है मेरी लाइफ में क्या मैजिक हुआ। वहां पे एक बार पूछा जाता था हैंड रेस करो,
तो वहां पे ना 100 बंदों के हैंड रेज होते थे बताने के लिए कि मेरा नंबर तो 10 दिन से आ ही नहीं रहा, मेरा नंबर तो 15 दिन से आ ही नहीं रहा, बताने के लिए कि मेरी लाइफ में कितने मैजिक्स हो रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर जब पूछ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, बता दो कोई मैजिक हुआ है आपकी लाइफ में, बता दो कोई हुआ है किसी के पास में। तो यहाँ कोई मतलब कि किसी को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अलर्ट मोड हमारा नो यहाँ पर, मैं समझता हूँ हर एक के काम, सबके लाइफ में काम तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को देखो चेंज करना चाहते हैं तो हमें डेली रूटीन से हटके कई चीजें करनी पड़ेंगी ना, अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। तो कैमरा बंद करके वही है, फिर मैं बोलता हूँ तो फिर सब लोग बाद में मेरे को कहते हैं राजेश मत बोला कर तू ऐसे, तो काउंटिंग कम हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर 30-35 थे, देखा तुम्हारे इस बोलने की वजह से आज 5 बंदों की काउंटिंग कम हो गई। अब ऐसा तुमने बोला तो उस दिन फिर 2 जने जो है ना रूठ के चले गए, ये काउंटिंग कम हो गई, तो तुम ऐसा मत बोला करो। तो लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं बोलता हूँ हाँ मैजिक्स हो रहे हैं लाइफ के अंदर, तो यहाँ पे कोई बताने वाला ही नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, और मैं मैजिक्स बताना शुरू करूँ यहाँ पर, मैं रियलिटी बताऊं, कसम से कह रहा हूँ मेरे डेली के ना कम से कम मेरा जो हर घंटे के अंदर मेरे लिए कोई ना कोई नया मैजिक होता है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं बताता कि कई लोग कहेंगे मैं राजेश अपने आप गुणगान करने के लिए यहाँ जूम का इसने ओपन किया हुआ है, रोज सुबह से बस अपने ही सुनाने शुरू कर देता है, मेरा ये मैजिक, मेरा ये मैजिक, मेरा ये मैजिक, तो सिर्फ इसके सुनने के लिए थोड़ी आया है, तो फिर ये हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखो अलर्ट मोड में बैठो यहाँ पर, और खाली बैठना एक बात नहीं है, एक बात उस चीज को सुनना, उसको बात को समझना, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। राजेश जी, मुझे एंजल नंबर दिखने लगे हैं, हाँ जी। मैजिक हो रहे हैं आजकल, एंजल नंबर दिख रहे हैं आजकल, मैजिक्स हो रहे और हैं मेरा तो जहाँ कुछ जहाँ पे भी जाता हूँ मेरा मैं। तो अब मतलब ये लोग कहते हैं ना बोर हो जाते हैं, एंजल नंबर आपने 10-15 देख लिए, मेरा तो रियलिटी में मैं 2 दिन मैंने ना ऐसे ही किया कि मेरे पास 777 नजर आया, मैं कहा, अच्छा चलो यार आ ही रहा है, 111 अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मिरर नंबर अच्छा चलो। तो क्या हुआ फिर 2 दिन बड़े कम हो गए, मैंने कहा यार ये तो मैं लगता है फिर मैं लाइन से नीचे जाना शुरू हो गया क्या, कि मुझे एंजल नंबर नजर क्यों नहीं आ रहा 2 दिन से। फिर मैं कहा नहीं नहीं ऐसा मैं गलती कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट में रहना है, और जब एक्साइटमेंट में रहना है तो ये चीजें जरूर। अब मैंने अपनी बेटी को बताया, उसको रोज नजर आते हैं। और अब आप ये देखिए ना, मेरे को पीछे बोला गया हो सकता है गाड़ी ही ऐसी हो तेरे आसपास, तो फिर मेरे पास में 2-3 दिन मेरे को एक भी मैं एंजल नंबर नजर क्यों नहीं आया, मैं तो ढूंढता रह गया, और मैं 2 दिन मैंने इग्नोर किया तो मेरे को 3 दिन तक नजर ही नहीं आया एक भी एंजल नंबर। मैं तो ढूंढ रहा था, तेरे को ढूंढने के बाद भी मेरे को नजर नहीं आ रहे थे कि तब आसपास की गाड़ियां वो कहाँ चली गई। और जब मैंने फिर से दोबारा से एक्साइटमेंट के अंदर फिर वापस मैं अपने आप को उसी जोन में लाया, तो मैं अब फिर 1 वीक हो गया मेरे को रोज कम से कम 30-40 नंबर ऐसे कहीं ना कहीं। अब मैं घर से ना भी जाऊं तो मेरे को घर के अंदर ही मेरे को अपने जूम सेशन में, मेरे पास में यूट्यूब के उसमें मेरे कहीं ना कहीं ऐसे मेरे पास में एंजल नंबर आ ही जाता है, कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से। मैं व्हाट्सएप में देखता हूँ तो ऊपर मैसेज जो होते हैं ना कि आपके पास 111 मैसेज यहाँ पेंडिंग है, वहां पे 111 नजर आ जाता है मेरे को। आपके इस एक एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो वहां पे 666 नजर आता है मेरे को कि 666 आ गए हैं यहाँ पर आपके मैसेज, आपने अभी तक देखे ही नहीं है, 777 आ गए हैं मैसेज। और कोई ना कोई मेरे पास में ऐसा मैसेज आया होता है जिसके अंदर कोई ना कोई मोबाइल नंबर ऐसा होता है जिसके अंदर वो ट्रिपल नंबर मेरे को आ रहे होते हैं नंबर। हाँ जी सोलोनी जी। राजेश जी, एक मैजिक हुआ है मेरे साथ आज, चलो जी थैंक यू। बहुत ही अद्भुत। मैं आपको शेयर करती हूँ सबको। मैंने कल एक योगा की एक रील पोस्ट करी, उसमें 85,000 व्यूज़ आ गए हैं। वाह। मतलब एकदम से जंप, एक ही दिन के अंदर 85,000 व्यूज़ इंस्टाग्राम पे। वेरी गुड जी, बहुत बहुत बड़ा बढ़िया, मैजिक है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो हम डेली हम कर रहे हैं वो उसी का ही रिजल्ट है। तो आप जिस चीज के अंदर वो डालोगे, प्रेम डालोगे, वो चीजें तो बढ़नी बढ़नी है ना। राजेश जी, मैंने हाँ भी जी, अभी एक नया चैनल जो बनाया है, उसमें मेरे भी मतलब 2-3 वीडियो ऐसी वायरल हो गई है फटाफट, एक ही दिन में। बहुत बढ़िया, बहुत
आप चाहे छोटा मैजिक हो चाहे बड़ा मैजिक हो, रोज कोशिश करो कि मैंने एक चीज यहाँ पे आके बतानी है। और जब आप ये करते हो, स्प्रेड करते हो ना, तो आपकी लाइफ के अंदर और धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो एक छोटे छोटे जो है आपको कब बड़े गुलदस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। एक फूल की पंखुड़ी से कब आप एक गुलदस्ते पे पहुंच जाओगे, कब एक बगीचे पे पहुंच जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन बार बार कहता हूँ, अलर्ट मोड में रहो। मैंने अपनी लाइफ के वो 5 साल बर्बाद किए हैं अलर्ट मोड में ना आने की वजह से। 5 बार मैजिक बुक करने के बावजूद मेरी लाइफ के अंदर छोटे छोटे मैजिक्स ही रह गए, बड़े मैजिक्स नहीं आए। तो अब जो अलर्ट मोड में हूँ, तो आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर काफी अच्छे अच्छे मैजिक्स होने शुरू हो चुके हैं। लाइफ में बड़े अच्छे मैजिक्स हो रहे हैं। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वही है कि इसी की वजह से जो ना 3 महीने से अगर मैं 80 82 हमारे दिन कंटिन्यू चल चुके हैं, तो ये अलर्ट मोड की रहने की वजह और वो मेरे को जो मेरी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, वही मेरे को बूस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर रोज आपके सामने एक अच्छी एनर्जी लेके और एक हाई एनर्जी लेके मैं यहाँ बैठा होता हूँ। और कितनी भी मेरे को थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफ तो आ ही रही थी बीच में, लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूँ जूम के सामने, तो मेरी एनर्जी अलग ही तरह की हो जाती है। मैं वो चीजें भूल जाता हूँ और इस हाई जोन के अंदर आ जाता हूँ। और आप लोगों के साथ बैठ के मेरे को कई चीजें ऐसी हो रही हैं मेरी लाइफ के अंदर कि वो आती है चीज, वो भाग जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं इग्नोर करता हूँ और वो चीज निकल जाती है मेरे से, कि जो नेगेटिविटी वाली चीज होती है तो वो अपने आप मेरे से साइड हो जाती है। तो जब यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ की फ्रिक्वेंसी और सब लोगों के साथ की वजह से, अलर्ट मोड में रहने की वजह से, एक मैजिक बुक से, पावर बुक की वजह से, वो सारी चीजें मेरे लिए लाइफ में मेरी चेंज हो रही है बहुत अच्छे से। तो मैं आपको इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, कैमरा ओपन करो और अलर्ट मोड में रहना शुरू करो। सलोनी तेरे लिए खासकर है कि नींद से जाग के ना यहाँ पे बैठ के इम्प्लीमेंट, तो मुझे मालूम है तुम कर रहे हो अपने ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इसमें और अलर्ट मोड देना शुरू करो और लाइफ को अपने अच्छे से करना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ जी, रिंकी जी, रिंकी सोनी जी। रिंकी एक ही है, रिंकी सर सोनी जी। हाँ जी। 5:55 जो फोन देता था ये भी नंबर है। 5:55 क्या हुआ? ये भी एक एंजल नंबर में आता है। 5:55। 5:55 बिल्कुल, 555 एक एंजल नंबर है। और मैं तो डेली 555 में देखता हूँ। यहाँ पे 5:50 हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं बार बार नहीं देखता कि अगर अपने आप नजर आना होगा आएगा, क्योंकि अगर एंजल नंबर है मुझे नजर आना है, तो आप यकीन करोगे, मैं इधर उधर जो भी काम कर रहा होता हूँ तो मेरी अचानक से नजर जाती है और 5:55 मेरे को जरूर नजर आता है, अपने आप ही नजर आता है। सबकॉन्शियस माइंड वहीं ले जाता है मेरे को अपने आप। 5:55 पे, 7:07 पे, 6 बज के 6 मिनट पे मेरी नजर अपने आप में जरूर जाती है इस टाइम की तरफ। अब वो मुझे नहीं मालूम, ये तो ऊपर वाले को मालूम है। तो मुझे उसने एंजल नंबर दिखाने हैं और मैं देखता हूँ और मैं अंदर से बड़ा प्रेम से भर जाता हूँ। जब भी इस नंबर को देखता हूँ, वो मेरे अंदर एक वो मुस्कान आ जाती है अंदर से। जब तो से हम ध्यान चलिए दे रहे जी। हैं ना सर, जब से ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, तो आएंगे ना ऐसे। जब यही तो है, जब हम प्यार करना शुरू करते हैं तो हमारी तरफ वो फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है उन चीजों का। तो सारे जने अभी मैजिकल डस्ट के लिए तो ओपन कर सकते हैं, तो ओपन कर लीजिए। बस जी, चलिए जी। ये हटा देते ना, गैलरी ले आते। आज एक सेकंड, क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ एक मैंने कहा मिनट। गैलरी ले आते, ये बुक वाला हटा देते। हाँ वो भी हटा रहा हूँ, मैं भूल गया थोड़ी। मैंने स्पॉटलाइट से भी हटा दिया। ठीक है जी, गैलरी व्यू आ गया। हाँ जी। तो इशरत कह रही है मुझे हीलिंग दो, इसको हीलिंग चाहिए, और आज इसकी बेटी का बर्थडे भी है, डॉक्टर के लिए भी
डॉक्टर के लिए ब्लेसिंग। हाँ जी बिल्कुल। तो आज इसकी बेटी का बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी हमारी ब्लेसिंग। चलो जी मैजिकल डस्ट देते हैं हम लोग। और जो भी और रिसीविंग मोड में आना चाहिए अपना हैंड रेज कर सकता है, वर्चुअल वर्चुअल हैंड रेज करके सामने आ सकता है। सोना जी बिल्कुल रिसीविंग में रहो, अच्छी बात है। पहले हम लोग इन तीनों पे कंसंट्रेट करके करेंगे, फिर उसके बाद में आपस में एक दूसरे के ऊपर भी, सबके ऊपर। आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पर रिंकी ने कुछ दिन बताना शुरू किया था, तो वो रोज ही आती थी, रोज बोलती थी कि आज मेरी लाइफ में ये मैजिक हो रहा है, आज मेरी लाइफ में ये मैजिक हो रहा है। और जब से उसने स्प्रेड करना बंद किया, उस दिन के बाद में महीना होने वाला है, रिंकी का एक भी उसके बाद में नहीं आया कि मेरी लाइफ में कोई मैजिक हो रहा है। कैमरा बंद है उसका आजकल, और पहले कैमरा ओपन रहता था। और उनके हस्बैंड के लिए भी आया था कि हस्बैंड भी बढ़िया से कर रहे हैं, सब कुछ है। अब रिंकी वापस शेल में चली गई है क्या, मुझे समझ नहीं आई। रिंकी का कैमरा बंद रहता है। तो हाँ, तो रिंकी गायब है इतने दिनों से, वो आती है बस थोड़ी देर के लिए, कैमरा ओपन करती है। तो अब मुझे नहीं मालूम चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग नहीं आ रही उसकी। तो जब शेयरिंग आएगी तभी पता चलेगा कि कैसा लाइफ में कैसा चल रहा है। तो देख लो आप अपनी लाइफ में झिंगालाला करना चाहते हो। आप ही मतलब एकदम भूकंप की तरह मतलब घुसती हो, सब तोड़ तोड़ करके सब ले लू के चली जाती हो। नमिता जी हमें कह रहे हो या कहीं किसी और से बात कर रहे हो? हमें कह रही है। तोड़ फोड़ के चली जाती हूँ, क्या तोड़ फोड़?